So very good evening, all the participants. Good Today evening, sir. Good we will evening, sir. start with section 21. Hmm. So I would request Kajal Kiran Rayaji to please read from this PPT. From this is basically AI generated. So it describes in brief section 21. And this way we will be able to test how much AI is able to give us information. So Yes, sir. uh, I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So this is an AI generated summary of section 21. Now imagine yourself as an insolvency professional, right? Now you have been appointed, you have made a public announcement, you have got the claims, and now this is your turn to constitute the COC. But before constituting COC, you must know whom should we invite, who should not be inducted into COC. So this is what section 21 explains in brief. So now please read the entire provisions of section 21 and let us see what is not included by AI. Yes, please, Kajal Kiranji. Feature details constitution of committee of creditors. Composition comprises all financial creditors of the corporate debtor. Exclusions. Related parties of the corporate debtor have no right of representation, participation, or voting. Huh. Exclusion. Now here one question, just one question here. He says related parties of the corporate debtor have no right of representation, participation or voting. We have all read that section 524 talks of related parties, right? And directors are related parties. So as an IRP, whether you will be inviting directors or board of directors in the meeting, yes or no? Yes, sir. Yes, so they will be called, but they have no right of participation and Right. voting. So Yes. they cannot speak. They can just sit there. They can watch the proceedings. They are entitled to minutes also, but they can't represent. They cannot say that you take this decision or that decision. Right? Participation here means active participation is not allowed, but passive participation is okay. They can sit there. They can watch the proceedings. What is going on? They have got. They will get the agenda items also. Right? Or they cannot vote. Next, Exclusion. exclusion, exception. Yes. A financial sector regulator that is a related party solely due to debt due equity conversion before the insolvency commencement date is not excluded. Now, what is the meaning? What is the meaning of this? So, there could be a financial entity which is not a, so it shall not apply to a financial creditor represented by a financial creditor, this financial Percent of sector regulator. Say banks are there, right? Now, there was a bank which was having redeemable convertible debentures. Now, those convertible debentures were converted into equity. Bank was having directorship also in the CD. So, it became a related party by virtue of 524. But it will not be deemed to be a related party. So, this is the exclusion. This is the meaning. Is it clear? yes, sir. But that conversion should be before the insolvency commencement date. Right? Next. Consortium voting. Each financial creditor in a consortium is part of the COC with voting share based on their specific debt. Now, section 21(6)(a), if you read what it says, so there could be a consortium funding. Suppose there are 4 partners in the consortium. Now, they have all given debt to the company. Right? Suppose there are 4 banks and each have funded 100 crores. So, total funding is 400 crores. So, each of them will be a part of the COC, but their voting share will be based on their specific debt. So each, suppose the total debt share is 1000 and each of these 4 members of the consortium have debt of 100 crores each, then each will get 10% vote share. This is the meaning, right? Is it clear? Yes, sir. Yes. Now next. Dual creditors. A person who is both
financial and operational creditor is treated as a financial creditor only to the extent of the financial debt owed. Now, there could be a person who has given loan also and who is rendering services also, right? So there could be an employee who has given loan also to the company and he is rendering services also. Similarly, there could be a supplier who has given loan also and he is giving his supplies also. So only to the extent of financial debt, he will be inducted into the COC and his vote share will be decided on that basis, right? So there could be a case where a person is having both capacities as financial creditor and operational creditor. Then both have to be decided accordingly, right? I hope this point is also clear. Yes, sir. Yes, now next. Decision threshold. All decisions are taken by a vote of not less than 51% of the voting share unless otherwise specified. So basically, there are different types of decisions which will be taken in the COC. Sometimes there are specific thresholds like 12 baby rate withdrawal application. So in that case, 90% of the vote share, right? There are other cases like approval of resolution plan, 66%. Any other decision which requires 66%? सर टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए एक्सटेंशंस के लिए Yes, time extension. Very good. Section 12. So for time extension, 66. For approval of resolution plan or rejection or recommendation of liquidation, 66. Any other decision which requires 66%? 2-3 more cases. Replacement of RP. RPS. If you want to replace suppose an IRP is there in the first meeting, you want to replace him. So then also 66% is required, right? Yes. ठीक है. अच्छा. No financial creditors. Now, suppose there are no financial creditors, then what will happen? Operational creditors, sir. Will हाँ. come. Operational creditors. No, the board will specify. Board will specify. Now, what is the meaning of board will be specifying? What is the meaning? The meaning of board may be specifying means that board will be giving through regulations and we'll read about those regulations. Regulations say 18 largest operational creditors in terms of value plus 1 representative of workmen and 1 representative of employees, right? We'll read about it in detail. Yes, next. Now stage. Let us see this stage. Selection of AR. So there is a concept of authorized representative also. So what is that concept? Authorized representative. Identification. The interim resolution professional identifies 3 insolvency professionals who are eligible, willing, and not related parties. Right. So there could be a case where a class of creditors is required. A class of creditors is required when there are financial creditors belonging to a particular class, right? A hint we got in section 7 where home buyers were there. For home buyers, there was a specific criteria that, okay, not less than 100 or 10%, right? That criteria was there. Similarly, there could be debenture holders, there could be deposit holders, there could be so many other things, right? So in those cases, we cannot invite everybody to the COC meeting. So we have to have a link. We have to have a postman to whom the IRP will share the details and that AR will in turn share the details with those class of creditors, right? Yes, please. So what he will do? He will identify 3 insolvency professionals. Yes. Location preference. IPs should ideally be from the state union territory with the highest number of creditors in that class. Right. So now he has got the books of accounts. So based on the books of account, he can make out the okay to which state, because he has got addresses also. So to which state the number of creditors belong. Now you will be surprised that public announcement is to be made within a period of 3 days from the insolvency commencement date. But within 3 days, whether he will be able to find out all the addresses, the answer may be no, right? So he has to make a choice. Basically, normally one could be the state to which in which the registered office is located,
or maybe nearby states. He will then have a look and identify 3 insolvency professionals. Yes, please. Next. Section. The IRP selects the IP who is the choice of the highest number of financial creditors in the class via Form CA. So Form CA is there, but prior to Form CA, where this AR are to be seen, in which form we have to give the details of the ARs? In the public notice itself. So in the public notice itself, they will say that, okay, these are the 3 insolvency professionals, and whenever the class of creditors are filling up their forms, claim forms, this claim form is submitted via form number CA. So in that, they will give the details of the AR, right? To which AR will they be preferring? And based on the number of votes, and this is not based on their claim. This is not based on their claim amount, simply on the basis of their number. Suppose there are 5,000 home buyers, and out of 5,000 home buyers, say 3,000 are opting for ARA. 1,000 are opting for ARB, and then another 500 opting for AR3. So AR1 will be selected. This is the meaning, right? Next. ये हो गया. अच्छा, आगे चलते हैं. Now, ना पढ़िए, नजर आ रहा होगा आपको. Appointment. The IRP applies to the adjudicating authority for appointment within 2 days of claim verification. Now, once he has verified the claims, in the claims they must have mentioned the name of the AR. So he will assess who has got the highest number of votes. So he will apply to the adjudicating authority. Yes. Interim status. While the application is pending, the selected IP acts as an interim representative with the same rights and duties as an AR. Right. Yes. Yeah. Creditors with at least 10% voting share can request a replacement of AR. So if they want a replacement, so they can also request for a replacement with at least 10% vote share. Right. Responsibility area. एक क्वेश्चन. हाँ, बोलिए. सर, ये जो AR है, AR इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, राइट, इन केस ऑफ होम बायर्स, जहाँ पे नंबर ऑफ होम बायर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. यस. हाँ जी. तो सर, ये AR के अपॉइंट, ये जैसे आपने कहा ना कि AR भी अपॉइंट अपने होम बायर्स करेंगे, जो ज्यादा नंबर्स में होम रहेंगे. बायर्स वोट करेंगे. बेसिकली दे विल इंडिकेट देयर प्रेफरेंस इन फॉर्म सीए. होम बायर्स अपना क्लेम फॉर्म भरेंगे. उस क्लेम फॉर्म में पब्लिक नोटिस में 3 नाम दे रखे हैं. अब उन 3 नामों में से वो एक नाम सेलेक्ट कर लेंगे. भैया देखो, मेरे हिसाब से ये वाला ठीक है. ओके. हाँ, तो जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है सर, समझ गए. और ये वोट शेयर के बेस पे नहीं है, इस पे खाली नंबर के बेस पे है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ, ठीक है जी. चलिए. हाँ, कम्युनिकेशन. Circulates agendas and seeks preliminary views with at least a 12-hour window. हाँ, अब देखिए, जैसे होम बायर्स हैं, अब होम बायर्स में भी 5,000 है ना. सबको तो सीओसी मीटिंग में बुलाना नहीं है. अब इतने सारे होम बायर्स हैं, तो पहले उनको कहता है कि भैया देखो, ऐसा है कि हम आपको 12 आवर विंडो देते हैं, और उस 12 आवर विंडो में आप अपना प्रीलिमिनरी व्यू बना लो. ठीक है. अभी वोटिंग नहीं हो रही है. ठीक है. लेकिन इनको एक विंडो दे देंगे. ये सब ऑनलाइन ही होती है चीजें. भाई प्रिलिमिनरी व्यू, कहीं मीटिंग तो बुलानी नहीं है, कहीं बैठे तो है नहीं फिजिकली, है ना. तो क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है, ये मीटिंग होने वाली है, उसका ये एजेंडा आइटम है, तो आपका क्या ओपिनियन है. आप इसको फेवर में वोट करने वाले हो, अगेंस्ट में वोट करने वाले हो, अपना कोई सजेशन देना चाहते हो, तो वो सारी चीजें उस पर एक अपना प्रिलिमिनरी व्यू बना ली. ठीक है. ये कौन बोलेगा? AR बोलेगा. किनको? क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. और बोलेगा देखो 12 आवर की विंडो खुलेगी, आपस में डिस्कस कर लो वहां पर. वोटिंग, अगर कोई पोल वगैरह कराना तो पोल करा लेगा. यस प्लीज. Informed decisions. Assists creditors in understanding committee of creditors discussions and facilities informed decision making. हाँ, तो बेसिकली ही एक्ट्स एज अ चैनल. क्लेम्स डायरेक्टली IRP के पास आएंगे. क्लेम्स प्रोसेसिंग में, क्लेम वेरिफिकेशन में AR का कोई रोल नहीं है. यस प्लीज. Document review. Reviews prepared by the resolution professional and provides comments. अच्छा, और अगला? Resolution plan. नहीं, sorry. नहीं, एसेट मार्केटिंग.
Asset marketing helps during consultations to prepare and enhance the marketing strategy for the corporate debtors' assets. Resolution plans assets in evaluating resolution plans and suggests modifications required by the creditors. तो ये सारे काम ये करता है। हाँ। Features: legal representation acts as a representative before the adjudicating authority, NCLAT, and other regulatory bodies. Information access ensures creditors have access to necessary information and documents to form opinions. ठीक है, तो पता चल गया एआर के बारे में, बेसिक आइडिया हो गया कि एआर क्या होता है। यस सर। हाँ, अब इनकी फीस भी है ना। तो फीस कितनी कितनी है? फीस डिपेंड करेगी कि आपके नंबर ऑफ क्रेडिटर्स कितने हैं। तो क्या फीस स्ट्रक्चर है? 10 to 100, 50,000, 101 to 1,000, 20,000, and more than 1,000, 25,000. एक बार ये भी चेक करते रहना सही भी है कि नहीं। ये एआई ने जनरेट किया हुआ है, तो ये सही भी है या नहीं, काजल किरण जी? तो ये तो 15,000, 20,000, हाँ सही है सर। हैं? 6,000 का अंतर है। 10 to 100 पे मिल रही है इनको 30,000। ये तो पुरानी दे रखी है इसने। ये पुरानी है। हाँ, ये देखो ना, ये मिल रही है 30। हमने तो इसको 30 बताया था, ये ऐसे कैसे लिखे? ये 30 है, इसकी है 40। ये 40 है ना? और ये 50 है, यही है ना? ये सर 10,000 का अंतर है। हैं? हाँ, 10,000 का अंतर है 30, सर। 40, 50 है। ठीक है। ये 10, 12, 15 जो है ना, ये अलग चीज। चलिए, और भी As और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एफसी है ही नहीं, और सारे ही जो है, या सारे एफसी रिलेटेड पार्टीज, तो उस केस में क्या होगा? 18 largest operational creditors plus one of workman and one full employee. हाँ हाँ हाँ, तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है। और वन रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन, जो उसमें ना हो टॉप 18 में। ठीक है। और वन एम्प्लॉय मेंबर्स, और वोटिंग राइट होंगे जो स्टैंडर्ड सीओसी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है। 60. तो इतना चीज क्लियर हो गई आपको? Yes sir. यस सर। तो कुछ कुछ तो इसने समझा दिया हमारे को सेक्शन 21 के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट आती है। अब हम दोबारा अपना सेक्शन और रेगुलेशंस पर चलते हैं। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है इसके साथ, वो कॉन्सेप्ट है हमारी, एक 21 sir. है। 21(6) से। हाँ, नहीं, 21(6) से तो मोटा मोटा कवर कर ही लिया इसने, जैसे कंसोर्टियम के बारे में बता दिया। अब हम एक कॉन्सेप्ट है एआर से रिलेटेड, एआर का ही मिलता जुलता भाई होता है, एआर का छोटा भाई है, वो क्या है? हाँ यस सर। क्या होता है वो? क्या नाम है उसका? फैसिलिटेटर। भाई ये मॉनिटर है ना जैसे, तो वो सब मॉनिटर है। उसके प्रोविजंस देखते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यहां से पढ़ते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। ठीक है। ये, अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फैसिलिटेटर। ये कॉन्सेप्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर।
ये क्या होता है और ये किन केसेस में अपॉइंट होता है? तो पहले तो ये बताइए, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आपको? यस सर। हाँ, तो एक्सप्लेन कीजिए कि फैसिलिटेटर किन केसेस में अपॉइंट होता है। सर जब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स 1000 से ज्यादा होंगे तभी ये हाँ, अपॉइंट। अगर 1000 हो गए एग्जैक्टली तो हो जाएगा? नहीं सर, मोर देन नहीं वन होगा, थाउजेंड हाँ, एक्सीड्स वन। 1000। ठीक है, पहली बात। जो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स है इन क्लास एक्सीड 1000, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कमेटी में डायरेक्ट दी आईआरपी और आरपी एज द केस में भी, तो कमेटी डायरेक्शन देगी। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी अपॉइंट करें, कमेटी डायरेक्ट करेगी क्या, टू अपॉइंट एन आईपी। ये भी आईपी होना चाहिए, लेकिन ये आईपी कौन होगा? आईआरपी नहीं बन सकता, आरपी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के अलावा होगा ये कोई आईपी। ठीक है, और एनी अदर पर्सन एज फैसिलिटेटर फॉर ए सब क्लास। ये क्या बन गया? उसके क्लास के बीच में भी सब क्लास हो गई विद इन द क्रेडिटर्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, अपॉइंटमेंट कब कंसिडर होंगे? इफ आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी, पहली मीटिंग हो गई कमेटी की। ठीक है, एक उसमें से सब क्लास बना दी। उसमें कितने क्रेडिटर्स हैं? 100 है। टोटल कितने हैं? मोर देन 1000। उनमें से 100 क्रेडिटर्स ऐसे ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया एक फैसिलिटेटर भी अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटेटर कितने होंगे? 5, नॉट फाइव। थिंक 5। 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 1 2 3 4 5, जितने भी चाहेंगे वो अपॉइंट कर ले। फीस हमने अभी पढ़ी थी एआर की। एआर की फीस का 1/5 इसको मिलेगा। ठीक है, और पर मीटिंग ये 2 मीटिंग कंडक्ट कर सकता है इनके साथ में, फैसिलिटेटर के साथ। ठीक है, द फीस फॉर फैसिलिटेटर फॉर ईच सब क्लास शैल बी 20% ऑफ द फीस। ठीक है, कितनी होगी ये? 20% of the fees specified for the AR, and such fees shall be part of the insolvency resolution process cost। ठीक है, और कैसे रिप्लेस करना है? द कमिटी में रिप्लेस द फैसिलिटेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए majority ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सब क्लास। ठीक है, तो majority majority मतलब सिंपल majority। ठीक है, चलिए, अब इसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? ये क्या करेगा? ही विल एक्ट एज ए कम्युनिकेटर बिटवीन द एआर एंड क्रेडिटर्स ऑफ द सब क्लास। ये सब मॉनिटर टाइप हो गया। अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी एज ऑब्जर्वर्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेडिटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब क्लास। तो ये भी मीटिंग में आएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशंस टू द क्रेडिटर्स इन ए सब क्लास अबाउट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज पर एडवाइस ऑफ एआर एंड एनी अदर टास्क असाइंड बाय द कमिटी टू इंप्रूव रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एआर वाली कॉन्सेप्ट भी क्लियर, ये फैसिलिटेटर वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई आपको? यस। अब रह गई फीस। सर आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन सर। हाँ, यस यस। Sir, is calculator allowed there in the exam? We can take calculators or they will provide in the computer itself to calculate. नॉर्मली दे वॉन्ट ऑब्जेक्ट टू नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक तो अलाउड नहीं है। No, sir, no, normal calculator, sir. Is it जरूरत क्या है? allowed? कोई जरूरत ही नहीं है, क्या है को कंफ्यूजन क्रिएट करना। मोबाइल भी अलाउ नहीं करते, वो कुछ अलाउ नहीं करते। Okay, sir. छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर का चक्कर ही मत रखिए। आप कंटेंशन में पढ़िए मत कि कैलकुलेटर ले जाना ले जाना। Okay, sir. हम्म, अब देखिए, यहां पर 2 फीस नजर आ रही है आपको। कौन कौन सी फीस है? एक तो जो सीओसी मीटिंग में जा रहा है एआर, ठीक है, उसकी फीस कितनी है? 30 40 और 50। अभी अपनी भी तो मीटिंग्स करेगा ना,
अब हमने पढ़ा था कि भाई ARB जो है वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग करेगा, तो उसकी फीस कितनी है? उसकी फीस है 10, 12 और 15। हम्म, ठीक है। और पर मीटिंग, पर COC मीटिंग, ये कितनी मीटिंग कर सकता है? 2 मीटिंग कर सकता 2 है। मीटिंग कर सकता है। ठीक है। तो 2 मीटिंग की जो कॉस्ट है वो तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में हो जाएगी। ठीक है। और उससे ऊपर जो है फिर उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा COC का। ठीक है। तो यहां तक यस, बातें क्लियर है? यस सर। अब आप मेरे को बताइए कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो गए। ठीक है। अब आपको पता चलता है कि भैया ये जो कंपनी है इसमें तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है ना, रियल एस्टेट की कंपनी है, होम बायर्स है। तो आप क्या क्या एक्शन लोगे? इन ब्रीफ बताइए क्या एक्शन लोगे। अमरिंदर कौर जी आप बताइए क्या एक्शन आप ले लोगे। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन IRP। ठीक है। हाँ तो जी। you come to know that it's a real estate company, so naturally there are home buyers. हाँ So जी what actions you will take? सर, सबसे पहले मैं देखूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि पब्लिक नोटिस में भी आपको कुछ ध्यान रखना है क्या जब आप पब्लिक नोटिस इश्यू करोगे? यस सर, पब्लिक नोटिस में मेरे को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और आईआरपी का डिटेल्स देना पड़ेगा। हाँ हाँ, कितने कितने नाम देने पड़ेंगे आपको पब्लिक नोटिस में? सर, तीन तीन। 3 नाम देने पड़ेंगे। अच्छा। एआर के तीन, और इन टर्म रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का एक। नहीं नहीं, वो तो IRP तो खुद है ही ना, वो वही तो पब्लिक हाँ नोटिस हाँ इश्यू कर रहा है। हाँ, वो तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में तीन देने हाँ, पड़ेंगे। वो तो IRP तो अपना डिटेल्स दे देगा, अपना एड्रेस दे सकता है, अपना ईमेल ID देगा, अपना मोबाइल नंबर देगा, जो भी देगा वो डिटेल्स अपनी दे देगा। ठीक है। हाँ जी। 3 उसने नाम दे दिए। अब होम हाँ, बायर्स कौन सा क्लेम फॉर्म भरेंगे? सर होम सी बायर्स, ए हाँ फॉर्म फॉर्म CA भरेंगे, और फॉर्म CA में ये लिखेंगे कि कौन सा AR रिप्रेजेंटेटिव उनकी चॉइस का है। हाँ ठीक है। जी। अच्छा, हाँ मान लीजिए टोटल 5,000 होम बायर्स हैं। 5,000 होम बायर्स में से 3,000 ने ही अपनी चॉइस दी, बाकियों ने वो कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है ना हाँ कि जी। 3,000 ने ही जो है AR का नाम लिखा, बाकियों ने जो है नाम छोड़ ही दिया, कुछ कॉलम भरा ही नहीं हुआ वाला। तो आप क्या करोगे? मेजोरिटी मतलब आप 5,000 पे कैलकुलेट करोगे या 3,000 पे, ये क्वेश्चन है। क्योंकि आपको तो मेजोरिटी से लेना है ना उन तीनों में से। हाँ जी। तो मेजोरिटी जो आप कैलकुलेट करोगे वो 5,000 पे कैलकुलेट करोगे या 3,000 पे, दिस द क्वेश्चन, सिंपल है। तो कैलकुलेट तो 5,000 पे होना नहीं चाहिए। कैलकुलेट नहीं नहीं नहीं, वो लिखा है उसने वोटेड। ओके। वोटेड ओके। लिखा हुआ है। अब ये काजल ओके किरण जी बता देंगी, काजल किरण जी कहाँ लिखा है ये वोटेड? ये पॉइंट नंबर 16A का, रेगुलेशन 16A 3C देखिए। ये 16A में यहां से बता देता हूँ। ये 16A आ गया आपका, और इसमें 3C पढ़िए जरा। 3C क्या बोलता है? ये नजर आ रहा सर। हो आपको स्क्रीन पर? हाँ जी सर, आ हम्म। रहा है नजर। हम्म। The resolution professional shall apply to the adjudicating authority for appointment of the authorized representative who receive the highest percentage of voting shares of financial creditors in that class. हम्म। ठीक है जी। तो जिसका भी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग शेयर है ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन दैट क्लास। अब So, नेचुरली जिन्होंने वोट नहीं किया वो कंसिडर नहीं करेंगे। okay. हम्म। भाई टोटल वोटिंग परसेंटेज कितनी होगी? टोटल तो जैसे मान लो 5,000 में से 3,000 ने किया तो 3,000 को 100 मानेंगे ना हम, हाँ जी। है ना ये? चलिए। तो 21 में तो और कोई खास बात नहीं है, मेन मेन बातें हमने कवर कर ली। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ARB समझ ली। कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटर क्या है, किस सिचुएशन में अपॉइंट होता है? तो 1000 से एक्सीड हाँ करेगा तब हाँ, रिलेटेड। 1,000 से एक्सीड करेगा तो ही होगा। और टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटेटर कितने हो सकते हैं? 5। 5 हो सकते हैं। ठीक है ना?
और ये एक किस्म से सब क्लास बन जाएगी। और इसको अगर हटाना हो फैसिलिटेटर को तो कितने परसेंटेज चाहिए? सर majority. हाँ, majority, majority लिखा, majority। ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन तो आ गई कि यू हैव इनवाइटेड अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू द मीटिंग। एक आपने बुला लिया। चलिए, ये तो हमने कर लिया कवर। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर भी हमने देख लिया। ये हो ही गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन नंबर 22। बाद में जब रेगुलेशंस पर आएंगे तो और अगर कोई पॉइंट हमारा मिस हो गया होगा तो उसको कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, रेगुलेशन 17। तो 22 क्या बोलता है? सेक्शन 22, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। अभी तक कौन था? अभी था आईआरपी। ठीक है। अब सीओसी की मीटिंग हो रही है। सीओसी की मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि इसी को कंटिन्यू कराना है या रिप्लेस करना है। ठीक है। और पहली मीटिंग कितने दिन में होनी है? 7 days sir. 7 डेज। और पहली मीटिंग में कितना परसेंटेज चाहिए? 66%। या रिप्लेस करना है या अपॉइंट करना है, दोनों के लिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली रिप्लेस के लिए चाहिए। अपॉइंट अगर करना है, क्योंकि नाम इसका चेंज हो रहा है, पहले ये आईआरपी था, अब बन गया ये आरपी। तो इसको चाहे आरपी बनाना हो या इसको रिप्लेस करना हो, दोनों के लिए ही वोट परसेंटेज रिक्वायर्ड है, नॉट लेस देन 66%। ठीक है। अब अगर ये कंटिन्यू करेगा तो भी इससे रिटर्न कॉन्सेंट ली जाएगी। ठीक है। रिटर्न कॉन्सेंट कौन से फॉर्म में है? डबल ए, AA yes sir. है ना। और अगर Yes sir. रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए क्या होगा? सीओसी एक एप्लीकेशन फाइल करेगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रपोज्ड आरपी along with the written consent from the proposed resolution professional in the specified form। ठीक है। क्योंकि अब ये सीधा ही आरपी अपॉइंट होगा, अब ये आईआरपी नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए पहले आईआरपी को आपने हटा दिया तो ये जो दूसरा बनने वाला है उसका नाम आईआरपी से नहीं वो शुरू करेगा, वो आरपी से ही शुरू करेगा। ठीक है। और जो प्रपोज नेम है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ द आरपी टू द बोर्ड फॉर इट्स कंफर्मेशन एंड बोर्ड विल रिवर्ट विद इन 10 days एंड देन दे विल अपॉइंट। ठीक है। सेक्शन 22 इज क्लियर। नाउ सेक्शन Yes. 23। सेक्शन 23 बोलता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सब्जेक्ट टू सेक्शन 27। अच्छा, एक बार रेगुलेशन भी देख लेते हैं। 22 में रेगुलेशन था ना 17, एक बार रेगुलेशन 17 और देख लेते हैं कि रेगुलेशन में भी कुछ खास बात लिखी है क्या। सेक्शन तो हमने पढ़ लिया। रेगुलेशन 17 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी। ठीक है। अब कमेटी की रिपोर्ट कब तक फाइल करनी है इसको? विद इन 2 days ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स रिसीव। ठीक Yes है। sir. 2 days. मतलब 14 days तो हो गया फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, 7 days हो गया फॉर Veri- Verification. वेरिफिकेशन, और 2 दिन हो गए Filing of a report. फॉर फाइलिंग। तो 23 days हो गए। और हमने क्या पढ़ा था कि 7 days में फर्स्ट सीओसी मीटिंग करनी है, तो पहली सीओसी मीटिंग 30 days में हो जानी चाहिए। Yes sir. ठीक है। The committee and members of the committee shall discharge functions and exercise powers in respect of CIRP in compliance with guidelines. IRP shall hold the first meeting within 7 days of filing of the report. So 14 plus 7 plus 2 plus 7, 30 days। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी इज डिलेड, तो आईआरपी शैल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द आरपी फ्रॉम द 40th day till a resolution professional is appointed under section 22। ठीक है। तो जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता ये क्या करेगा? ये परफॉर्म करेगा फंक्शंस ऑफ आरपी, क्योंकि आईआरपी के फंक्शंस अलग दे रखे हैं और आरपी के फंक्शंस अलग। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 23।
क्या बोलता है सेक्शन 23 बोलता है रेजोल्यूशन पर्सनल टू कंडक्ट द CIRP। ठीक है, subject to section 27, the resolution personnel shall conduct the entire CIRP and manage the operations of the corporate data during CIRP period। ठीक है, provided that the resolution personnel shall continue to manage the operations of the corporate data after the expiry of the CIRP period, क्योंकि हमने CIRP period पढ़ा हुआ है ना, 180 days या प्लस 90 days, मैक्सिमम 330 days। अब मान लो 330 दिन हो गए तो क्या ये घर चला जाएगा? नहीं, जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता, या तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए या लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाए, तब तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, ही शैल कंटिन्यू टू मैनेज, ये अपनी सीट नहीं वेकेट करेगा, ये नहीं भाई 180 दिन हो गए मैं तो चला ना। द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज वेस्टेड और कन्फर्ड ऑन द IRP इन केस ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन पर्सनल अंडर सबसेक्शन 4। तो IRP उसको अगर कोई चेंज हुआ है तो पुराने वाला IRP नए वाले को रिकॉर्ड्स दे देगा। ठीक है, सेक्शन 24 मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब देखो, आपने क्लेम्स आ गए, आपके पास क्लेम्स आपने वेरीफाई कर लिए, AR की कमेटी के लिए बता दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और फिर उसके बाद में आपने फर्स्ट मीटिंग करनी है। अब फर्स्ट मीटिंग के लिए कैसे कैसे मीटिंग करनी है उसके बारे में लिखा है रेगुलेशन, ये सेक्शन नंबर 24 के अंदर। ठीक है, तो पहली बात फिजिकली भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, ऑडियो वीडियो भी हो सकती है। ऑल मीटिंग्स ऑफ द कमिटी शैल बी कंडक्टेड बाय द RP। ठीक है, द रेजोल्यूशन पर्सनल। अब सबसे पहली बात, नोटिस ऑफ मीटिंग किसको इसको दे रहा है? देखो, नोटिस ऑफ मीटिंग देना एक अलग बात है और COC मेंबर होना। जो COC मेंबर है सिर्फ उनको ही वोटिंग का अधिकार है, बाकी को बुलाया जा सकता है। किसको बुलाएंगे? कौन कौन सारे आएगा? COC सर, सारे COC हाँ, मेंबर्स ऑफ द COC डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हाँ, एंड। ठीक है, अच्छा, फैसिलिटेटर भी आएगा क्या इसमें? फैसिलिटेटर पढ़ा था ना हमने अभी, यस सर फैसिलिटेटर भी आएगा इसमें। Yes, sir. आएगा। ठीक है, members of the suspended board of directors or partners of the corporate persons as the case। ठीक है, यस सर जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो पार्टनर्स हैं उनको भी बुलाया जाए। एंड ऑपरेशनल क्रिएटर्स भी बुलाए जाएंगे। हाँ, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बुलाए जाएंगे कब? इफ द अमाउंट ऑफ देयर एग्रीगेट ड्यूटी इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट। ठीक है, टोटल डेट कंपनी का 1000 है और 1000 में से इनका डेट 100 या 100 से ज्यादा है। ठीक है, तो इनको भी बुलाएंगे। यहां वर्ड क्या लिखा है? नॉट लेस देन 10, तो अगर 10 भी होगा तो भी बुलाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्टर्स, पार्टनर्स एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स may attend the meetings of the committee of creditors but shall not have any right to vote in such meetings। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन मान लो कोई डायरेक्टर आया ही नहीं, वो कहेगा यार हमने क्या करके जाना है, हमें वोट का अधिकार नहीं, हम बोल सकते नहीं वहां, हमने क्या करना है। अगर वो नहीं जाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट शैल नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग्स, लेकिन नोटिस भेजना जरूरी। ठीक है, subject to subsection 6, 6A and 6B of section 21, any creditor who is a member of the committee of creditors may appoint an insolvency professional other than the resolution professional to represent such creditor in a meeting of the committee of creditors। तो जो भी मेंबर ऑफ COC है वो किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है कि भैया मेरे बिहाफ पे आप अटेंड करो। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तो बहुत सारे रोल्स अवेलेबल है ना सर। हाँ हाँ। अच्छा, मान लीजिए एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ने किसी IP को अपॉइंट कर दिया, तो उसकी फीस कौन बेयर करेगा? वो खुद बेयर। ठीक है, वो तो अपने लिए भेज रहा है ना, अपने इंटरेस्ट को वॉच करने। ईच क्रेडिटर शैल वोट इन अकॉर्डेंस विद द वोटिंग शेयर असाइंड टू हिम बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल डेट्स ओड टू सच क्रेडिटर। The resolution personnel shall determine the voting share to be assigned to each creditor in the manner specified by the board, and the meetings of the committee of creditors shall be conducted in such manner as may be specified। तो उसके लिए रेगुलेशंस अपने को देखने हैं।
ठीक है। रेगुलेशंस कहां दे रखे हैं मीटिंग्स के बारे में? रेगुलेशन नंबर 18 to 26, ये देख लेते हैं एक बार। रेगुलेशंस भी क्विकली देख लेते हैं। रेगुलेशन नंबर 18 to 26 क्या कहते हैं? ये है मीटिंग्स, कैसे कैसे मीटिंग कंडक्ट करनी है। A resolution personal shall convene a meeting of the committee before lapse of 30 days from the last meeting। मतलब 2 मीटिंग के बीच में 30 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। Provided that the committee may decide to extend the interval between such meetings subject to the condition that there shall be at least one meeting in each quarter। तो डिसाइड कर सकते हैं भाई एक कम से कम एक मीटिंग तो करनी है पर क्वार्टर। डिपेंड करेगा ना कंपनी कैसी है, कितनी उसमें डिसीजंस लेने वाले हैं, वो सब चीज। A resolution personal may convene a meeting if he considers it necessary on a request received from members of the committee and shall convene। देखो एक ही में दो बता दिया, क्या पहले बोल दिया मे और बाद में बोल दिया शेल 18(2) में। तो मे कब है और शेल कब है? मे तो तब है अगर रिक्वेस्ट मिली है फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द सीओसी, और शेल कब है? अगर रिक्वेस्ट जिनसे मिली उनके पास 33% वोटिंग राइट्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी के पास 5% वोटिंग राइट है, अब वो कहता है जी मीटिंग बुला लो सीओसी, तो फिर आरपी का डिस्क्रिशन है कि वो बुलाए या ना बुलाए। लेकिन अगर 33% कहेंगे तो बुलानी पड़ेगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ सब रेगुलेशन 2 it is clarified that meetings may be convened under this sub regulation till the resolution plan is approved under subsection 1 ऑफ सेक्शन 31। मतलब या तो अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान तक या ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन तक, तो ऐसे करना है। एंड डिसाइड ऑन मैटर्स विच डू नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन। देखिए एक स्टेज ऐसी भी आती है जब रेजोल्यूशन प्लान सीओसी ने अप्रूव कर दिया विद 66% मेजोरिटी, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। अब इससे पहले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब तक अप्रूवल ना आ जाए या लिक्विडेशन ना हो जाए तब तक आरपी अपनी सीट में रहेगा, वो परफॉर्म करता रहेगा अपने फंक्शंस, है ना। Yes, sir. अब यहां क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है कि मीटिंग्स आपको इस सब रेगुलेशन में कन्वीन करनी है। मतलब अगर कोई मेंबर कहेगा तो भी कन्वीन कर सकते हो अगर आपको लगता है जरूरी है, और अगर 33% कहेंगे तो डेफिनेटली कन्वीन करनी है। ठीक है। लेकिन आपने उस मीटिंग में डिसाइड क्या करना है? अगर मान लीजिए सीओसी ने पहले ही अप्रूव कर रखा रेजोल्यूशन प्लान, तो फिर उसमें आप रेजोल्यूशन प्लान को डिस्कस नहीं करोगे उन मीटिंग्स में, है ना। उससे आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में प्लेस ए प्रपोजल। इसके बाद अगली बात, ये तो मीटिंग कन्वीन करने की बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर किसी का प्रपोजल आया, ठीक है, तो उसको कंसिडर करना जरूरी है या नहीं है? देखो कोई भी प्रपोजल आए, चाहे जिसके पास 1% वोट शेयर भी, अगर आरपी को लगता है तो कर सकता है। और कब जबरदस्ती करना पड़ेगा? अगर जिसके पास 33% वोटिंग है। क्लियर है ना। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर एज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है। अब मान लीजिए सीडी का कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, तो कमेटी क्या कहेगी? कमेटी आरपी को बोलेगी कि भैया जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी को बुलाओ कि वो मीटिंग में आए विदाउट वोटिंग राइट्स फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट्स ऑन मैटर्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट। ठीक है। तो रेराम के अंदर जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, क्लॉज पी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ रेरा। ठीक है। तो क्लॉज 2 पी में कौन सी अथॉरिटी होती है? सेक्शन 2 पी ऑफ रेरा। तो एक बार देख लेते हैं सेक्शन 2 पी ऑफ रेरा क्या बोलता है। एक मिनट। सेक्शन 2 पी ऑफ रेरा।
ये है जी सेक्शन 2P। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सर विजिबल नहीं है। हाँ अभी देखो, ये आ गया ना जी क्लॉज, ये सेक्शन 2P। क्या बोलता है सेक्शन 2P? Competent authority means the local authority or any authority created or established under any law for the timing in force by the appropriate government which exercises authority over land under its jurisdiction and has powers to give permission for development of such immovable property। तो इसको कहते हैं competent authority। तो ये competent authority कौन सी होगी? जैसे कई जगह पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं, जैसे जालंधर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है ना। कुछ कुछ सिटीज में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना रखे हैं। कुछ जगह पर क्या, जैसे यहाँ डीडीए है, कहीं पर नोएडा अथॉरिटी है, इस तरह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, तो उसको कहते हैं लोकल अथॉरिटी। ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी होती है ओवर लैंड एंड हैज पावर टू गिव परमिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो होती है कंपिटेंट अथॉरिटी। तो सीओसी बोल सकती है कि भैया कंपिटेंट अथॉरिटी को भी बुला लो। बेसिकली उनको इन्विटेशन जाता है ताकि अगर वो आए चाहें तो आ सकते हैं, और आने के बाद अपना सजेशन देंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट की क्या डेवलपमेंट स्टेज है। ठीक है जी। अब चलिए अगला रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 19। रेगुलेशन 19 क्या बोलता है कि कम से कम कितना नोटिस देना है मीटिंग के लिए? नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर रेगुलेशन नंबर 19। Yes, sir. हाँ, कितना नोटिस देना है? 5 days, sir. हाँ, नॉट लेस देन 5 days। 5 days. Yes, sir. और ये जो नोटिस देना है, देखो यहां पर वर्ड क्या लिखा है? पार्टिसिपेंट। यहां सीओसी मेंबर नहीं लिखा है ना। तो सबको ये, जाएगा। हाँ ये सबको जाएगा। At the address it has provided to the IRP or RP other case may be, and such notice may be sent by hand delivery or by post, but in any event be served on every participant by electronic means in accordance with regulation 20। ठीक है, तो क्या क्या मोड दे दिए? हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली तो सबको जाना है। अब पार्टिसिपेंट का भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार जरा। तो पार्टिसिपेंट अगर लिखा है तो इसने पार्टिसिपेंट का डेफिनेशन भी दिया होगा। पार्टिसिपेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया होगा? सेक्शन रेगुलेशन 2 में दिया होगा, है ना। ये रेगुलेशन 2 है। तो रेगुलेशन 2 में बोलता है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट 2L में बोलता है पार्टिसिपेंट मीन्स ए पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड ए मीटिंग ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 24 जो हम पढ़ रहे हैं, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमिटी टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो ये होता है पार्टिसिपेंट। हम्म, अच्छा 5 दिन से कम भी नोटिस कर सकते हैं क्या Yes, कमिटी? sir. हाँ, Yes. तो कमिटी रिड्यूस कर सकती है नोटिस पीरियड फ्रॉम 5 days टू सच अदर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 24 hours एज इट इज। लेकिन अगर एआर है तो कम से कम फिर 48 आवर्स का नोटिस देना जरूरी। ठीक है, क्योंकि एआर ने भी तो आगे बताना ना फिर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को, इसलिए इसमें 48 आवर्स है और अदर्स में 24 आवर्स, और नॉर्मली नॉट लेस देन 5 days नोटिस इन राइटिंग। राइटिंग भी लिखा है। ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से देना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से क्या देना है वो भी दिया हुआ है इसमें, कि भाई आपको हेडिंग लाइन में क्या लिखना है, ये सब चीजें इसमें दे रखी है। ये आप देख पढ़ सकते हो अपने आप, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है? कॉर्पोरेट डेटा, प्लेस, टाइम एंड डेट, है ना। पीडीएफ डॉक्यूमेंट देने हैं, उसके बाद में एक आदमी का नाम भी देना पड़ेगा कि भैया अगर आपको कोई दिक्कत है तो इससे आप कर लेना कम्युनिकेट। अब जो नोटिस ऑफ मीटिंग है उसमें क्या क्या लिखना है आपको, वो रेगुलेशन 21 में दे रखा है। नोटिस में क्या रहेगा? वेन्यू, टाइम एंड डेट, एंड ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो एंड वीडियो। तो दोनों चीजें हाइब्रिड भी हो सकती है, मतलब कुछ लोग फिजिकली आ जाए और कुछ लोग वीडियो पे अवेलेबल हो जाए। एंड शैल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इनेबल पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन्स। तो मतलब उसका लिंक वगैरह वो सब आपको देना। The notice of the meeting shall provide that a participant may attend and vote in the meeting either in person
or through an authorized representative. ठीक है, provided उसका that फॉर्म such, भी अटैच करना पड़ेगा ना? है जी, फॉर्म भी अटैच कर देते हैं ना पर्सन का, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का। हाँ हाँ वो तो है ही, वो प्रॉक्सी फॉर्म वगैरह तो अटैच होगा ही। ये कंपनी भी हो सकती है ना, कंपनी फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो फिर उसमें तो कोई ना कोई अटेंड करेगा उसके भी आप। हम्म। The notice of the meeting shall provide that a participant may attend and vote in the meeting either in person or through an authorized representative, provided that such participant shall inform the resolution professional in advance of the meeting of the identity of the AR who will attend and vote at the meeting on its behalf. ठीक है, तो अगर कोई पार्टिसिपेंट है वो फिर आरपी को बताएगा एडवांस में, ईमेल पे बता देते हैं कि देखो भाई मेरे बिहाफ पे ये आदमी आएगा। ऐसा हो सकता है ना, जैसे कंपनी के बिहाफ पे कोई आएगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना। भाई वीडियो में किसको एडमिट करोगे, आप उसी को एडमिट करोगे ना जिसका आपके पास इंटीमेशन है, ये बता। और नोटिस में क्या रहेगा, नोटिस में कुछ आइटम तो ऐसी होती हैं जो डिस्कस करनी होती हैं और कुछ आइटम ऐसी होती हैं जिसपे वोट करना होता है। And copies of all documents relevant to the matters to be discussed and the issues to be voted upon at the meeting. अच्छा, आपकी पहली सीओसी मीटिंग हो रही है तो पहली सीओसी मीटिंग में कोई ऐसा इश्यू होगा क्या कि जिस पर वोट करना पड़ेगा, या कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा नॉर्मली? होगा सर, वो इंटर्न प्रोफेशनल से। हाँ वेरी गुड, ठीक है। आईआरपी से जब आरपी अपॉइंट करना है तो एक एक आइटम तो वोटिंग का होगा ही होगा मिनिमम, है ना। A यस सर। notice of the meeting shall state the process and manner for voting by electronic means and the time schedule including the time period during which the votes may be cast. ठीक है, फिर login ID, details of a facility for generating password and for keeping security and casting of vote in a secure manner, and provide contact details of the person who will address the queries connected with the electronic voting. भाई मेरा सर्वर नहीं चल रहा, मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उसके लिए भी एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप दे दो। ठीक है, कोरम कितना रहेगा, कोरम नॉर्मली रहता है 33। 33% का। ठीक है, और provided that the committee may modify the percentage of voting rights required for quorum in respect of any future meetings of the committee. ठीक है, अब ये जो 33% है ये भी वोटिंग राइट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, if members of the committee representing at least 33% of the voting rights. अच्छा, मान लीजिए कोरम में नहीं हुआ तो क्या होगा, मीटिंग शेल स्टैंड adjourned एट द सेम टाइम एंड प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे। और अगर उसमें भी नहीं आया तो जो मेंबर्स प्रेजेंट है वही कोरम मान लिया जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन 23 बोलता है आपको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, भाई कोई और नहीं आएगा, है ना। अब इसको क्या करना है, रिकॉर्ड भी करनी है और प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग इसको किसी को देनी नहीं है। मान लीजिए पार्टिसिपेंट कहने लगे भाई हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो, नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देनी, ये इसके अपने पर्पस के लिए है। ठीक है, अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो वो कह सकता है भाई एक पर्सन मेरे साथ और आएगा। ठीक है, where a meeting is conducted through video conferencing or other audio and visual means, the scheduled venue of the meeting as set forth in the notice convening the meeting, which shall be in India, shall be deemed to be the place of the said meeting, and all recordings of the proceedings at the meeting shall be deemed to be made at such place. ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड वेन्यू ऑफ द मीटिंग है वो इंडिया में होना चाहिए और वही प्लेस ऑफ सेड मीटिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको नोटिस में प्लेस भी लिखना है ना। अब प्लेस में मान लो हो ही रही है ऑडियो विजुअली, तो वो क्या प्लेस होगा, वो जहां पर मीटिंग कन्वीन हो रही है वही हो। कंडक्ट ऑफ मीटिंग, अब मीटिंग बुला लिया आपने, आरपी क्या रहेगा, आरपी चेयरपर्सन होगा। और सबसे पहले जैसे क्लास में क्लास टीचर क्या करता है, अटेंडेंस लेता है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल टेक ए रोल कॉल, एक रोल कॉल ले, और उसको क्या रिकॉर्ड करेगा, उसका नाम क्या है, वेदर इज अटेंडिंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ द कमेटी और एनी अदर पार्टिसिपेंट। ठीक है, वेदर इज रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर्स, लोकेशन दैट ही हैज रिसीव्ड द एजेंडा एंड ऑल द रेलेवेंट मटेरियल फॉर द मीटिंग,
ये सब क्यों जरूरी है कि बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, देखो जी मेरे को तो एजेंडा ही नहीं मिला, है ना। बाद में लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें यहीं पर ही रिकॉर्ड कर लेता है कि भाई सबका नाम पूछ लेता है, एजेंडा में एजेंडा मिल गया ना, ओके। That no one other than him is attending or has access to the proceedings of the meeting at the location of that person. After the roll call, the resolution personnel shall inform the participants of the names of all persons who are present for the meeting and confirm if the required quorum is complete. और ये जो रिक्वायर्ड quorum है ये पूरी मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है। और इनके अलावा कोई भी पर्सन अटेंड नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द आरपी। और मिनट्स इसको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। एंड सच मिनट्स शैल डिस्क्लोज द पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड द मीटिंग इन पर्सन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन्स, ठीक है। द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल सर्कुलेट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विद इन 48 आवर्स ऑफ द सेड मीटिंग। अब मीटिंग के 48 आवर्स के अंदर इसको क्या करना है, सर्कुलेट करने हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। अच्छा 24 आवर्स ये क्या है, 48 आवर्स मिनिमम टाइम है मैक्सिमम टाइम है? मैक्सिमम टाइम है, विद इन मैक्सिमम, 40। हाँ विद, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। उसके बाद 25 वोटिंग्स बाय द कमिटी। क्या कहता है इसमें ना, दो तरह की एक्शंस होते हैं, हमने पढ़ा था भाई। कुछ आइटम्स होंगी जो वोटिंग के लिए होंगी, कुछ डिस्कशंस के लिए होंगी, ठीक है। कुछ एक्शंस इसमें सेक्शन 28 में दे रखे, हम सेक्शन 28 अभी पढ़ेंगे, उनको तो आपको मीटिंग में ही कंसिडर करना है। लेकिन अदर अदर देन 28(1) में कुछ मेजर डिसीजंस दे रखे हैं, जैसे चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर वगैरह वगैरह। लेकिन जो 28(1) में नहीं दे रखे वो फिर आप दैट मे बी कंसिडर्ड इन मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। The resolution personnel shall take a vote of the members of the committee present in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same. अब देखो जहां पर वोटिंग है वहां मेंबर्स की बात करता है ना, और जहां अटेंडेंस वगैरह वहां पार्टिसिपेंट्स की बात करता है, तो ये ध्यान रखना है आप, है ना। एट द कंक्लूजन ऑफ ए वोट एट द मीटिंग द रेजोल्यूशन पर्सनल शेयर अनाउंस द डिसीजन टेकन ऑन आइटम्स अलोंग विद द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हु वोटेड फॉर और अगेंस्ट द डिसीजन और एब्सटेन्ड फ्रॉम, ठीक है। The resolution personnel shall circulate the minutes of the meeting by electronic means to all members of the committee and the authorized representative, if any, within 48 hours of the conclusion of the meeting. ठीक है। कैसे सर्कुलेट करने हैं? By electronic means to all the members of the committee and the authorized representative, if any, within 48 hours of the conclusion of the meeting. Seek a vote of the members who did not vote at the meeting. ऐसा भी हो सकता है ना कि मीटिंग में आदमी आया लेकिन उसने उस टाइम वोट नहीं किया। अब कोई एजेंडा आइटम ऐसी है जिसमें 66% वोट चाहिए, अब 66% हुआ नहीं, तो जब तक 66% नहीं हुआ तो अब ये क्या करेगा, अब ये कह देगा भाई देखो ऐसा है, वो कहेगा भाई मुझे अपने हेड ऑफिस से अप्रूवल लेनी है। कई लोग आते हैं ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंकर आएगा, रीजनल ऑफिस से अप्रूवल होगी, भाई मैं तो यहाँ डिसाइड नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये वोटिंग विंडो ओपन कर देते हैं, ठीक है। Seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting by electronic voting, where the voting shall be kept open from the circulation of the minutes for such time as decided by the committee. ठीक है, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मिनट से आपको टाइम लेना है, और सर्कुलेशन कितने देर में करना था आपको, 48 आवर्स, एंड शेल नॉट एक्सीड 7 days। अब ये जो है ये वोटिंग विंडो 7 days के लिए ओपन रहेगी मैक्सिमम, प्रोवाइडेड दैट on a request for extension made by a creditor, the voting window shall be extended in increments of 24 hours period, ठीक है। तो अब पहली बात, जिन्होंने वोट नहीं किया उसके लिए वोटिंग विंडो ओपन करेगा मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम 7 days, ठीक है। और अगर कोई रिक्वेस्ट मिलती है एक्सटेंशन की तो फिर आपको 24 आवर्स की एक्सटेंशन देनी है आगे, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल एक्सटेंड द वोटिंग विंडो वेयर द मैटर्स लिस्टेड फॉर वोटिंग हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द रिक्विजिट मेजॉरिटी वोट।
कोई ऐसी आइटम थी जिस पर मान लो 66% मेजोरिटी चाहिए थी, 66% हो चुकी है, ठीक है, और एक एक्सटेंशन ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो फिर आप फर्दर एक्सटेंशन नहीं दोगे, है ना। भाई कोई भी ऐसा डिसीजन तो है नहीं जिसमें कि 100% वोट चाहिए, मैक्सिमम 90 चाहिए। अगर 90 वाले में 90 हो चुका है, एक एक्सटेंशन हो चुकी, बस खत्म, फिर उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेगा, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं ना, अच्छा ठीक। है ना जी। The authorized representative shall circulate the minutes of the meeting received under sub regulation 5 to creditors in a class, ठीक है, क्योंकि आईआर तो ये जो आरपी है, आरपी तो किसको दे देगा मिनट्स, ये तो एआर को दे देगा, है ना, सारे मेंबर्स को तो भेजेगा नहीं जो होम बायर्स हैं। अब ये जो एआर है ये फिर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को भेजेगा, and announce the voting window at least 24 hours before the window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least 12, ठीक है। वोट पहले वोटिंग विंडो अनाउंस कर देगा, क्या, 24 घंटे पहले अनाउंस कर देगा, देखो भैया इस पे वोटिंग होने वाली है, और वोटिंग विंडो खुलेगी 12 घंटे के लिए, ठीक है। वोटिंग बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, the authorized representative shall cast his vote in respect of each financial creditor on behalf of all financial creditors he represents in accordance with the provisions of subsection 3 or subsection 3A of section 25A as the case may be। तो इसको हम जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, 25A 3A क्या कहता है, ठीक है। और वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है, इसमें सिक्योर सिस्टम क्या है, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हैं। तो हम सेक्शन 25A 3A पर चलते हैं। वो ये कहता है कि एआर किस हिसाब से वोट करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि वोट तो एआर ने करना है, सारे लोग तो आ नहीं रहे, अब एआर वोट कैसे करेगा। अब देखो ऐसा है, इसमें तीन चीजें, पहली बात, जो एआर है अपना दिमाग नहीं लगाना है इसको, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वही इसको कैरी आउट करना है, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने बोला इसको या होम बायर्स ने बोला वैसे ही इसको वोट करना है। अच्छा मान लीजिए उन्होंने बोला कुछ और ये कुछ वोट कराए, उसके लिए क्या प्रोविजन है, उसके लिए प्रोविजन ये कहता है कि ये क्या करेगा, ये बताएगा कि भैया उन्होंने मुझे क्या कहा है, ठीक है। सर फाइल करना है वो। हाँ इसको फाइल करना, 25A 4 पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, the authorized representative shall file with the committee of creditors any instructions received by way of physical or electronic means from the financial creditor he represents for voting, ठीक है, कि भाई appropriate voting instructions creditor, ठीक है, पहली बात। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर ने बोला भाई जैसे वोट करना है वैसे ये करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 12A का एजेंडा है, कोई आइटम ऐसी है जिसमें विड्रॉल के ऊपर वोटिंग होनी है, तो फिर तो 90% आपको वोट देखना है, ठीक है। लेकिन जो अदर मैटर्स, ठीक है, तो अदर मैटर्स में क्या है आपको देखना है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 5,000 होम बायर्स है, तो 5,000 के 5,000 हो सकता है ना वोट करें, भाई आप वोटिंग विंडो ओपन कर लो, उनको ईमेल भेज दो, जो मर्जी, अगला सोचेगा मरने दो मुझे क्या, मैं नहीं वोट करता, ठीक है। तो पहली बात, तो जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें आपने देखना है, क्या देखना है कि कितनों ने वोट किया है, हु हैव कास्ट देयर वोट, देखो आपको रेड में नजर आ रहा होगा, है ना। और दूसरी बात क्या रेड में नजर आ रही, मोर देन 50%। मान लीजिए 5,000 होम बायर्स हैं, 5,000 में से 3,000 ने ही वोट किया, और 3,000 में से 2,500 फेवर में है रेजोल्यूशन के, ठीक है। ये अदर देन 12A वाला रेजोल्यूशन है, ये प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। 12A पर तो इंडिविजुअली वोट कंसिडर होगा इनका भी, चाहे क्लास हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अदर देन 12A आपको क्या करना है कि मोर देन 50% और हु हैव कास्ट देयर वोट, तो 100% मान लेना। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, 5,000 होम बायर्स हैं, 5,000 में से 3,000 ने वोट किया, 3,000 में से 2,000 ने फेवर में वोट किया, तो इसका मतलब 2,000 बटा 3,000 मतलब 66% ने फेवर में वोट किया, मोर देन 50 हो गया, तो मोर देन 50 मतलब 100, और 100 किसका, 3,000 का नहीं 5,000 का,
ठीक है, उन 5,000 को कुछ वोट शेयर होगा ना, तो वो जो वोट शेयर है उतना मतलब उतने वोट शेयर वालों ने आपको फेवर में वोट किया उस रेजोल्यूशन के। तो एक बार रिपीट करेंगे जो लास्ट में आपने कहा, एक बार। हाँ, मैं अभी रिपीट कर देता हूं, मैं अभी रिपीट किया आपको एक्सेल पे समझा देता हूं, वो ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे ये देखिए, वैसे वोटिंग कैसे होती है मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपसे, है ना। ठीक है सर। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए आपके पास है, ये थोड़ा थोड़ा, ये सभी लोगों को थोड़ा देर में समझ में आता है, मुझे भी काफी साल बाद समझ में आई थी ये बात। अब आप ये देखिए, कुछ तो हैं आपके जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऐसे भी होंगे ना, जब मीटिंग हो रही है तो उसमें क्या होगा, कुछ इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, मतलब बैंक वगैरह वाले आएंगे, ठीक है। उनका तो सीधा सीधा है, या तो वो फेवर में वोट करेंगे या अगेंस्ट वोट करेंगे। मान लीजिए इनका वोट शेयर 40% है ना। अब 40% में से मान लीजिए जो फेवर में वोट किया, 40% में से ये फेवर में वोट करने वाले मान लीजिए आपके हैं 20%, आधों ने फेवर में वोट किया, ठीक है, और अगेंस्ट में वोट किया 60%। 20%, परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब है होम बायर्स। अब होम बायर्स में क्या करना है आपको, होम बायर्स में मान लीजिए टोटल होम बायर्स है आपके 5,000, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, एक मिनट, एक एक मैं जरा ये शेयर करता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी, अब क्लियर है, अब क्लियर है, स्क्रीन आ रही नजर। हाँ जी। हाँ, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे 40% के, फेवर में वोट किया 20% ने, और अगेंस्ट में वोट किया 20 ने। होम बायर्स आपके हैं टोटल 5,000, टोटल होम बायर्स हैं 5,000। जिन्होंने वोट किया वो थे मान लीजिए 3,000, बाकियों ने वोट ही नहीं किया। और 3,000 में से जो 3,000 कर दो, और 3,000 में से भी फेवर में जो वोट किया वो किया मान लीजिए 2,400 में, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं। और अगेंस्ट में वोट किया 600, ठीक है ना। और एब्सटेन्ड, जो एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग है वो टू रहेगा यहाँ थाउजेंड पे 2,000, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब जी। अब बात ये है, और होम बायर जो है ये वो 60% का शेयर है इनका मान लीजिए, ठीक है, दो ही है, सिंपल रखते हैं। और तो इसका मतलब फेवर में कितनों ने वोट किया, यहां पर कितना लिखेंगे हम। सर यहाँ पे आएगा 2,400 डिवाइडेड बाई 3,000। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ वो तो हो ही गया ना, या तो पहले ही हो गया ना। हाँ जी। अब तो ऐसा है कि जैसे 40% दो ही वोट है, 40% वोट शेयर बैंकर्स का है, 60% होम बायर्स का है। अब जी। 3,000 में से 2,400 ने फेवर में वोट किया, इसका मतलब 80%, मोर देन 50% ने वोट किया ना, मोर देन 50% ने वोट किया, मोर देन 50% मतलब 100%, 100% मतलब 60% ने फेवर में वोट किया, और अगेंस्ट में वोट किया 0 ने। अब बात क्लियर हुई नहीं। मतलब ये है कि होम बायर्स में हमने ये देखना है, पहले तो ये देखना है कि कितने ने वोट किया, और अब उनमें से दो ही बातें होंगी, या तो फेवर में करेगा या अगेंस्ट करेगा, है ना। हाँ जी। जो एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग वो तो वोट में नहीं माना जाएगा ना, वो तो वोट ही नहीं कास्ट किया ना उसने। तो जिसने वोट कास्ट किया 3,000 ने, 3,000 में से वो ये कहता है कि अगर मोर देन 50% है तो उसको आप उसको 100% मान लो। तो यहाँ मोर देन 50% है, यहाँ तो 80% ने फेवर में वोट किया हुआ, 2,400 डिवाइडेड बाई 3,000, है ना। हाँ जी। तो इसका मतलब ये 100% वोट हो गया। 100% मतलब जो 60% के 60% होम बायर्स थे सबने फेवर में वोट किया, ये मान लीजिए।
क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं। ये अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ये तो हो गया जिसमें 66% वोट चाहिए। अब मान लीजिए एक है 12 वे, ये केस दूसरा ले लेते हैं, ये 12 वे का केस। 12 वे में क्या डिफरेंस हो जाता है? 12 वे में भी यहां पर वही 40% लिखते हैं हम। फेवर ने वोट किया इतनों ने, और अगेंस्ट में वोट किया 20 ने। ठीक है। और यहां पर भी मान लीजिए यही सिचुएशन है होम बायर्स की, सेम सिचुएशन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है जी। इसको हम यहाँ इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स लिख देते हैं। कोई बात नहीं, एक दो बार में समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। अब इनका तो क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो यहां हो ही गया इनका इंडिविजुअल। अब यहां पर कैसे होगा? 5000 में से, अब ये चल रहा है 12 वे वाला केस, 12 वे की रेजोल्यूशन है, विड्रॉल एप्लीकेशन। और 5000 में से फेवर में वोट कितनों ने किया है? 2400 ने। ठीक है। तो जो फेवर में वोट किया ना, वही परसेंटेज वहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब 80% ऑफ किसका? मतलब 2400 डिवाइडेड बाई 5000 होगी इसमें कैलकुलेशन। ओके। है ना? जो अदर देन 12 वे वाली है उसमें आपको वोटेड से करना है, वोटेड इन फेवर डिवाइडेड बाय टोटल वोटेड। और इसमें क्या करना है? वोटेड इन फेवर डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स, टोटल वोट शेयर। तो यहाँ 2400/5000 होगा। तो अब 2400/5000 देख लीजिए क्या होगा आपका। 48। हाँ, यहाँ 48 लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा अगेंस्ट में 12। ठीक है। तो अब इस पे क्या मिला आपको? इसका वोट शेयर कितना हो गया? 68%। तो 68 का मतलब ये वाली रेजोल्यूशन पास नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 90% करनी थी आपको तो। ठीक है जी, ये मतलब। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं उसको। ये सभी को ही काफी देर बाद ही समझ में आती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमें भी कई सालों बाद समझ में आई थी ये। ठीक है जी। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, क्या कहता है। सबसे पहले तो कहता है थ्री। थ्री में क्या कहता है? थ्री में तो कहता है कि जो ए आर कैसे वोट करेगा? ए आर शेल नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है। और अगर मान लीजिए एक ए आर बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है ना? देन ही शेल कास्ट हिज वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोट शेयर। मान लीजिए एक ए आर है, वो चार फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, चारों ने उसको अलग अलग डायरेक्शन दे रखी है, तो उसके हिसाब से ही वो वोट करे। ठीक है। और मान लीजिए उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो क्या होगा? provided that if any financial creditor does not give prior instructions through physical or electronic means, the AR shall abstain from voting. ठीक है। उसके आपने नहीं कि अपना ही दिमाग लगा देना। दूसरा क्या कहता है? 3A क्या बोलता है? Notwithstanding anything to the contrary contained in subsection 1, the AR under subsection 6A of section 21, subsection 6A of 21 क्या है? क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। इसको कैसे वोट करना है? in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of the voting share of the financial creditor he represents who have cast their vote. ठीक है। ठीक है। तो तीन बातें हैं इसमें। क्या बात है? एक तो लिखा है ऑन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये भी जरूरी है। ये जो पॉइंट है, ये भी जरूरी है। एक मिनट। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स।
ये तो ये जो ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें तीन बातें देखनी है क्या? सर वो एआर वाला भी हाईलाइट कर दीजिए ना सर, एआर वाला, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला सर। हाँ हाँ। हम्म, हम्म। मतलब क्या करना है आपको? भाई वोटिंग तो एआर कर रहा है। अब एआर को कुछ ने बोला वोट करो, कुछ ने बोला नहीं करो। तो जिन्होंने बोला वोट नहीं करो, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो जिन्होंने वोट किया, ये देखना है कि उसमें सीधा सीधा ये देख लेना है कि मोर देन 50% का क्या डिसीजन है। मेन बात ये है, जो मोर देन 50% का डिसीजन है वही सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का डिसीजन है। सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन से? ये नहीं कि जिन्होंने वोट किया ना, टोटल का। यही हमने बताया ना, तीन तीन फिगर थी, 5,000, 3,000 इन फेवर, और टू 3,000 जिन्होंने वोट किया, और 2,400 जिन्होंने फेवर में वोट किया। ये तीन फिगर्स थी हमारे पास। तो हमने क्या माना कि 5,000 के 5,000 नहीं वोट अपना फेवर में वोट किया, यही बोला हमने। यस सर। और 12 में क्या बोल रहा है? ये भी बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट फॉर ए वोट टू सर बी कास्ट, एक मिनट, प्रोवाइडेड दैट फॉर ए वोट टू बी कास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A विड्रॉल वाली, द एआर शेल कास्ट हिज वोट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। तो वहां पर 3A नहीं देखना, वहां पर 3 देखना है। 3 में क्या है? इंडिविजुअल वोट्स है। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये बोल रही थी कि वो जो वो था ना, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। किसको? वो 12 वे वाला सर। अच्छा, ये एक, हाँ, 12 में मैंने एग्जाम्पल से समझाई दिया आपको, है ना? यस सर। ठीक है जी। अमरिंदर जी, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बाकी एक दो बार आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 मैंने बता ही दिया कि ये नहीं कि अपना दिमाग लगाएगा, ये फाइल भी करेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको मिली है, चाहे फिजिकल इंस्ट्रक्शंस मिली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस मिली हो, कि भाई उन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया। ये हो गया 25A। अब हम चलते हैं सेक्शन 26 पर। 25 हमारा हो गया था, ड्यूटीज। 24 मीटिंग्स था 25 ड्यूटीज कर लेते हैं, ड्यूटीज भी कर लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ आरपी। ड्यूटीज ऑफ आरपी क्या है? ड्यूटीज ऑफ आरपी में सबसे पहली ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, इंक्लूडिंग द कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है। और इसके लिए क्या करना है? ही हैज टू टेक इमीडिएट कस्टडी एंड कंट्रोल। ठीक है। रेगुलेशन 36A और रेगुलेशन 27 to 30, ये भी पढ़ लेंगे साथ में इसके। Immediate custody and control of all the assets of the corporate data, including the business records of the corporate data. Represent and act on behalf of the corporate data with third parties. Exercise rights for the benefit of the corporate data in judicial, quasi-judicial or arbitration proceedings. Raise interim finance, appoint accountants, legal or other professionals, maintain an updated list of claims, convene and attend all meetings, prepare the information memorandum. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 29। इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हु फुलफिल सच क्राइटेरिया एज में बी लेड डाउन बाय हिम विद द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल से एक क्राइटेरिया बनाएगा कि भैया जो नए हम प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आए, कौन प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स? जिन्होंने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? किस बेसिस पे होगा? हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द सीडी। अगर मान लीजिए 1,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसके लिए जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी तो वैसा ही होना चाहिए ना, है ना? कि उसकी नेटवर्थ उतनी हो, या उसने उस मैग्नीट्यूड की कंपनीज को हैंडल किया हो।
and such other conditions as may be specified by the board to submit a resolution plan or plans. Present all resolution plans at the meeting of the committee of creditors. File applications for avoidance and such other actions as may be specified. तो ये सारे काम इसको करने हैं आरपी को. अब इसके साथ हम रेगुलेशन 36 से और रेगुलेशन 26, 27 to 30 पढ़ लेते हैं. रेगुलेशन 36 से तो बोलता है आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पर इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ये आपको कब देना है? नॉट लेटर देन 60th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. ठीक है, फ्रॉम द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान. और फॉर्म जी के अंदर ये सबमिट करना है. ठीक है, और उसके बाद हम रेगुलेशन 27 to 30 पढ़ लेते हैं. पहले 27 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में क्या है? पहली बात तो 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को अपॉइंट करने हैं. 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब हर क्लास के लिए करने हैं. जैसे मान लीजिए 3 एसेट क्लास होती है, आपको पता ही है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, और उसका अपना ये क्या होता है, शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, F&A, है ना. तो इन 3 क्लासेस के लिए आपको 2 वैल्यूअर अपॉइंट करने हैं. वो क्या करेंगे? फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू बताएंगे आपको. द IRP और RP एट द केस में भी मे अपॉइंट एनी प्रोफेशनल. एक तो हो गए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, 2 हो गए हर एसेट क्लास के लिए. इन एडिशन टू रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज. अगर उसको लगता है कि सच सर्विसेज आर रिक्वायर्ड एंड सच सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल विद द कॉर्पोरेट डेटा. अगर पहले से ही उनके पास एम्प्लॉइज हैं तो उनको यूज कर लेगा. अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेगा? ये अपना ये अपॉइंट कर लेगा. अपॉइंटमेंट करने के क्या ध्यान में रखना है? एट एन आर्म्स लेंथ फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों को ही भर्ती कर लो. ठीक है, रिलेटिव ऑफ आरपी नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी ऑफ सीडी नहीं होना चाहिए, ऑडिटर नहीं होना चाहिए सीडी का पिछले 5 सालों में. ठीक है, या पार्टनर या डायरेक्टर ऑफ आईपी ऑफ विच द आरपी इज ए पार्टनर और डायरेक्टर, है ना, बेसिकली ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे. और इनवॉइस वो लोग डायरेक्टली रेज करेंगे कंपनी के नाम. ठीक है ना. द इनवॉइस फॉर फीस एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर दिस रेगुलेशन shall be raised in the name of the professional and be paid directly into the bank account of such professional. मतलब अपॉइंट ये करेगा, ये नहीं है कि इसके नाम इनवॉइस देंगे ना, ना इनवॉइस कंपनी के नाम ही जाए. 28 क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ डेट्स ड्यू टू क्रेडिटर्स. ये ट्रांसफर ऑफ डेट क्या है? इन द इवेंट ए क्रेडिटर असाइंस और ट्रांसफर्स द डेट ड्यू टू सच क्रेडिटर टू एनी अदर पर्सन. क्योंकि असाइनमेंट ऑफ डेट आपका इंसॉल्वेंसी में भी अलाउड है ना. तो विद इन 7 days आप क्या करोगे? जो टर्म्स ऑफ असाइनमेंट है, कोई असाइनमेंट एग्रीमेंट है ना, और या फिर वो उसके अलावा जो आइडेंटिटी ऑफ द असाइनी और ट्रांसफर. मान लीजिए एक डेट ए के नाम है कंपनी में. ठीक है, अब वो ए ने अपना डेट असाइन कर दिया बी को. अब कंपनी को तो पता नहीं कि बी कौन है ना. तो वो अब ये कौन बताएगा? वही बताएगा ना जिसने असाइन किया है. वो क्या बताएगा? देखो जी, ये तो असाइनमेंट एग्रीमेंट है और ये आइडेंटिटी है असाइनी या ट्रांसफर. ठीक है, और उसके बाद में सीओसी में चेंज हो जाएगा, नाम तो चेंज हो गया ना. द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल नोटिफाई ईच पार्टिसिपेंट. अब यहां देखो किसको बताना है? ईच पार्टिसिपेंट, है ना. ये नहीं कमेटी ऑफ मेंबर नहीं लिखा, पार्टिसिपेंट लिखा. एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ एनी रिजल्टेंट चेंज इन द कमेटी विद इन 2 days ऑफ सच चेंज. ठीक है, ये हो गया. सेल ऑफ एसेट्स आउटसाइड, बस 5 मिनट और लो. सेल ऑफ एसेट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. द रेजोल्यूशन पर्सनल में सेल अनएनकम्बर्ड एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. देखो जो एनकम्बर्ड है उनको तो बेच ही नहीं पाएगा ये, है ना. लेकिन अगर अनएनकम्बर्ड कोई एसेट्स हैं तो उनको ये बेच सकता है. और उसके लिए भी कैपिंग है. कितनी कैपिंग है? कि इट शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल क्लेम्स एडमिटेड बाय द IRP. 10% ऑफ टोटल क्लेम से एडमिटेड नहीं होगा. और इसमें सीओसी की अप्रूवल भी चाहिए विद 66% मेजॉरिटी.
और बोनाफाइडी कोई परचेजर है तो उसको क्या होगा, फ्री और मार्केटेबल टाइटल मिलेगा, चाहे कोई उसमें नॉट विथस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कई बार क्या होता है कि मेमोरेंडम में लिखा होता है भाई यू कैन नॉट सेल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, है ना, तो इसमें इसको वहां जो कुछ मर्जी लिखा हो तो यहाँ जो बोनाफाइड परचेजर उसको मार्केटेबल फ्री और मार्केटेबल टाइटल मिलेगा। असिस्टेंस ऑफ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये है कि अगर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर एन ऑर्डर सीकिंग द असिस्टेंस ऑफ द लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्चार्जिंग इज ड्यूटीज अंडर द कोड और दीज रेगुलेशंस। मतलब कस्टडी एंड कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम है ना, या जो भी वहां पर कोर्ट्स है, तो उसकी आप यू कैन सीक देयर असिस्टेंस और उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं, फिर आज थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है। सर कल की मंडे को